Am I audible or not? Yes, ma'am. Okay. Okay, see, we have to start with a new topic now, new points now, not a new topic. We have seen about the white label ATM, then again, what is brown label ATM? That part we have seen. Now, again, the new concept in the banking, that is NUUP. So, what is NUUP? Let's see. Even this would be new for me also, because I have never used this facility here. So, let's see like how we can use this kind of a facility. Okay. So, what is the full form of NUUP? It is National Unified USSD Platform. Okay, National Unified USSD Platform, that is NUUP. So what they have given here, it's a kind of a app basically, you know. Yes, National Unified Platform. Dial *99 hashtag for instant payment and the faster banking. ओके जल्दी बैंकिंग करने के लिए सर्विस को यूज किया जाता है एंड इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव अंडर प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम ओके मतलब ये स्कीम बेसिकली मतलब सारे लोगों को इजीली दे कैन डू द बैंकिंग सर्विसेज मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए मतलब each and every people should use this kind of a financial services. That was the main purpose. Now India can dial *99 hashtag from any mobile and experience the convenience of the instant payment and the faster banking. कभी ट्राई करके देखेंगे अभी तो नहीं देख सकती मैं लेकिन अब ऑब्वियसली इवन आई विल ट्राई एंड सी कि सच्ची में ऐसा हो पाता है या नहीं. You also remember *99 hashtag. Okay. So what exactly it is? So what is NUUP? It is National Unified USSD Platform. Is USSD based mobile banking services from NPCI that brings together all the banks and the telecom service provider. In NUUP, a customer can access banking services by just pressing *99 hashtag from his or her mobile phone. This service works across all GSM mobile handset. ओके सारे GSM मोबाइल हैंडसेट पे ये वर्क करता है लेकिन इसको कहा गया है दिस इज बेसिकली यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस. तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग. ओके so what is USSD? It is unstructured supplementary service data. Okay, it's the technology unique to GSM, that is Global System for Mobile Communication handset. It is the capability built into the GSM standard to support transmitting information over the signaling channels of the GSM, signaling channel of the GSM network. USSD provides session-based communication, enabling a variety of application. Variety of application. USSD technology, which was primarily used in the field of telecommunication, is going to make a significant impact in the field of banking services through NUUP. तो मतलब अभी पहले मुझे ये बताओ कि ये जो NUUP है this is for what? This is online banking. तो yes, it is a kind of online banking. लेकिन ये किसके हमारे पास क्या डिवाइस होना चाहिए then only we can use this kind of a services student. क्या डिवाइस हमारे पास होना चाहिए क्या लगता है आपको इतना पढ़ने के बाद में कौन सा डिवाइस अपने पास होना चाहिए? GSM मोबाइल नेट हैंडसेट. हाँ GSM मोबाइल हैंडसेट हमारे पास होना चाहिए. ठीक है देन ओनली वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. ओके यहाँ पे अगर हमें ये सर्विस को यूज करना है तो हमें कौन सा नंबर डायल करना पड़ेगा? What number we have to dial here? What we have to dial then we can use these services? *99 has. Yes, *99 hash. Okay, we have to use that. Okay, and this is basically USSD based technology. Then what are the key benefits of NUUP? The accessible through common code, that is *99 hash, across all telecom service providers. जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो उनके थ्रू वो एक्सेसिबल हो सकता है. देन अगेन वर्क अक्रॉस ऑल GSM मोबाइल हैंडसेट. नो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड ऑन द मोबाइल. मतलब वहाँ पे हमें कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है हम लोग डायरेक्टली जस्ट डायल करके वो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं. देन हैंडसेट एंड द सर्विस ऑल्सो हैज एन इंटरैक्टिव मेन्यू. ओके दोनों में इंटरैक्टिव मेन्यू रहेगा.
round the clock availability, functional even on holidays, provide variety of banking and the value added service. GPRS is not required, works only on voice connectivity. Okay, GPRS की जरूरत नहीं, यहाँ पे just voice connectivity से हो जाएगा. Additional channel for banking and the key catalyst for spreading financial inclusion, which no additional charges while roaming. What are the services available under NUP? NUP has been launched the following services, that is non-financial, financial, VAS. I really don't know what exactly the VAS here. Then again, balance inquiry, mini statement, then fund transfer, account number, fund transfer, Aadhaar, no MMID, change MPIN, generate OTP. Okay, ये सब वो services provide करता है. NUP is currently available on multilingual languages. वेट हम लोग इसका थोड़ा सा है ना देखते हैं, अगर हम लोग को यूट्यूब पे कुछ मिलता है उसका, देन विल सी. आप लोग भी देखो अगर आपको मिलता है तो सर्च करो थोड़ा यूट्यूब पे एक्चुअली कैसे फंक्शन करता रहेगा. Yes, even you can search. चलो we'll see it from here. नहीं बट उन्होंने ये आर्टिकल जैसा दिया है. लेकिन ये यूज करते वक्त आई थिंक स्टिल वी नीड टू बी लिटरेट. मतलब मुझे लगा कि नहीं एकदम गरीबों के लिए वो इजी रहेगा. चलो लेट्स सी. मैंने मेरे फोन में ट्राई करा, इसमें भी हो रहा है. जस्ट यही बता रहा है वेलकम टू अकाउंट्स नंबर दो वगैरह वगैरह. Mobile phone users in India. Okay. This is more than just a number. Star 99 hash signals the arrival of a super convenience in mobile banking. One number which can be used across all telcos and all banks as they get ready. Welcome to National Unified USSD Platform, NUUP, an initiative suggested in the report of Inter-Ministerial Group on delivery of basic financial services using mobile phones, supported by Reserve Bank of India, IBM, and NPFI, Mobile Payment Forum of India, and executed by NPCI, National Payments Corporation of India. Star 99 hash is one number for every Indian citizen, which will help banks increase their reach and extend the convenience of anytime, anywhere banking to their customers. Here is how it works. Raju has to send some money to his father at his native place. He dials star 99 hash on his mobile and follows a few simple steps. He enters his 7-digit MMID, then gets connected to his bank, following which he selects the IMPS option from the bank menu. He then enters the beneficiary mobile number and beneficiary MMID number. He then enters the amount to be sent and confirms the details. After this, he then enters his bank-given password and completes the transaction. An SMS will instantly inform his father about the amount that has been sent to him. Using star 99 hash, customers can do a host of banking activities like balance inquiry, mini statement, transferring money, and many more as they get ready. Besides, it can also help him pay his utility bills, do mobile and DTH top-ups, and the list goes on. For customers in rural India, star 99 hash brings a lot of convenience. Star 99 hash allows customers to do most of their banking on the mobile without stepping into a bank branch, like wages received, and is also a potential channel for implementation of financial inclusion objectives of Government of India. Star 99 hash offers several unique advantages. Being a USSD short code, it does away with the complexities of downloading an application
works on all GSM phones, irrespective of make, model, or service provider. Being a session-based communication with the user, no information of the transaction is stored on the mobile, making the transaction more secure. Star 99 hash utilizes the same capability as the voice calls, which makes banking services available even in remote locations. Behind this simple and convenient transaction is a secure and robust mechanism which ensures total accuracy, confidentiality, and security of money transfer. Star 99 hash, one number that will redefine mobile banking in India. ओके, सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आपको लगता है कि रूरल एरिया के लोग इसको यूज करते रहेंगे? यस, व्हाट डू ऑल से? यस मैम, करती होगी। I really don't think so, like they must be using it. मतलब वहाँ पे see, because what I feel कि though we are in the urban area, but even we people are having such kind of difficulties, we cannot say, but not the trust on the online banking. And when we talk about the rural people, so obviously वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि they are uneducated रहते हैं, so I really don't think so कि like they would be able to do this kind of a transaction. क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेजेस में तो है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहता है। हम लोगों ने जो अभी वीडियो देखा उसके अंदर भले वो इंग्लिश में था, बट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मैम रहेगा। अभी की जो हाँ बोलो बोलो। मैम जो अभी की ऑनलाइन बैंकिंग होती है, लाइक जो ये आप जीसीएम मोबाइल की ऑनलाइन बैंकिंग है, मैम बहुत डिफरेंस है, मतलब लाइक वो बहुत ज्यादा सेफ है, आई ओके, थिंक सो। अच्छा, जीएसएम मोबाइल का आप बोल रहे कि ज्यादा सेफ रहेगा। हाँ, हाँ, बिकॉज यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाले कि दे आर नॉट लाइक वेरीफाइंग। जैसे हम लोगों को देखो ओटीपी वगैरह आता है अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, तो दे आर नॉट वेरीफाइंग। ये ऑलरेडी बैंक ने तुम्हें कोड दिया रहेगा, जो बैंक है आप लोगों को पासवर्ड दे के रखेगी, तो उसके हिसाब से आप लोगों को किसी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है कि ओटीपी आएगा, मतलब तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं यहाँ पे। सो आई थिंक दैट वुड बी करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई और भी आपके थ्रू कर सकता है। जैसे अगर किसी को पता लग गया कि हाँ इनका मोबाइल के थ्रू ये वाला पासवर्ड है वगैरह, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास जा रहेंगे तो वो कर पाएगा। अदरवाइज या इट कैन बी क्वाइट सेफ ऑल्सो। ये भी कह सकते हैं कि शायद वो सेफ हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि नहीं करते। रूरल एरियाज के लोग जो थोड़े बिजनेसमैन जैसे रहेंगे ना, कि मतलब घर पे उनके बड़े बच्चे रहेंगे, दे आर वेल एजुकेटेड, और जो फार्मर्स थोड़े ज्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं ज्यादा, मतलब उनका अगर लार्ज स्केल फार्मर में वो लोग आते रहेंगे, आई थिंक दे मस्ट बी यूजिंग इट। बिकॉज वो लोग कैसे यूज करते रहेंगे, उनके घर पे अगर कोई उनको बताने वाला रहेगा कि ऐसा करो, ऐसा प्रोसीजर करना है, तो मतलब स्टार्टिंग के 5-6 ट्रांजैक्शन तो वो किसी को बोल बोल के ही वो लोग करेंगे। उसके बाद में वंस दे आर गेटिंग यूज्ड टू, देन ओनली दे कुड बी डूइंग इट, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे सब लोग ये। लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हर जगह के लोगों को मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज करना आना चाहिए, दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव। बट प्रैक्टिकली अभी तक पता नहीं सच्ची में इसका क्या रिजल्ट है करके। एक बार देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है करके। आप लोगों के घर पे, आपके गांव में क्या कोई यूज करता है ऐसा? यस, किसी ने यूज किया है अभी तक? किसी के फैमिली मेंबर्स ने वगैरह? ऑनलाइन तो तुम लोग ये वाला अपना जो नॉर्मल रहता है वो तो तुम लोग करते ही रहोगे, बट दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब ये डायल करके, तभी देखा है तुम लोगों ने? यस और नो बोलो, चलो यस मैम, देखा यस है। मैम, अच्छा, हाँ, अरे वाह, यस मैम, मेरी फैमिली में कोई था कजिन वगैरह, अच्छा, बहुत टाइम हो गया, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 3 to 4 ईयर की थी, अच्छा, तभी वो तभी लोग। उतना याद नहीं। मम्मी भी बताती थी फोन के, मतलब मेरे पापा बताते थे कि छोटे फोन में भी लाइक पहले, मतलब कुछ सालों पहले भी ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग होता था, बट ओके, डिफरेंट था अभी से। अभी से नहीं, लेकिन अभी भी ये होता है, अगर उन्होंने टेक्स्ट बुक में रखा है ना, तो ये अभी भी होता ही रहेगा।
ऐसे टाइप का फोन भी यस मैम हम लोग के घर पे हाँ पहले जनरली तो सबके पास ऐसे ही फोन रहा करते थे। वो अभी सब लोग एंड्रॉइड वगैरह यूज कर, लेकिन इवन हम लोगों का भी जो पहला फोन आया रहेगा वो उसी टाइप का आया रहेगा। तो मतलब यस, पहले ये लोग करते रहेंगे ज्यादा, लेकिन अभी कांट से एनीथिंग, देखेंगे। बट इट वॉज गुड वन, अच्छा लगा मुझे भी, थोड़ा अलग था ये। So let's start with the next point here. Next is what here? It is AEPS. So this is Aadhaar Enabled Payment System. Okay. So what is that? Introduction to AEPS. The new payment service offered by National Payment Corporation of India to banks, financial institutions using Aadhaar, the Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, issued unique identification number shall be known as Aadhaar Enabled Payment System and shall be referred to as AEPS hereinafter. This procedural guideline document for AEPS of the National Payment Corporation of India is based on and has reference to Micro ATM Standard Report of the Working Group on Technology Issues of the Indian Bank Association and UIDAI for banking services facilitated hardware and the interbank message flow. AEPS interface specification of National Payment Corporation of India, Aadhaar authentication API and the device security specification and the biometric fingerprint scanner specification of the Unique Identification Authority of India for Aadhaar authentication. What is the objective of AEPS? So to empower a bank customer to use Aadhaar as his or her identity to access his or her respective Aadhaar enabled bank account and perform basic banking transaction like balance inquiry, cash deposit, cash withdrawal, remittances that are interbank or interbank in nature through a business correspondent. But nowadays, like all, like whether you are opening an account or whatever it is, everywhere we need to send this Aadhaar card. Okay, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। एक मिनट बस। Okay, see. So Aadhaar, okay, this is Aadhaar enabled payment system. Then again, to subservice the goal of Government of India and the Reserve Bank of India is furthering financial inclusion. To subserve the goal of RBI electronification of retail payment, to enable banks to route the Aadhaar initiated interbank transaction through a central switching and clearing agency. Then again, to facilitate disbursement of government entitlements like NAREGA, Social Security pension, then handicap, old age pension, etc. of any central or the state government body using Aadhaar and authentication thereof as supported by UIDAI. To facilitate interoperability across bank in a safe and a secure manner, to build the foundation for a full range of Aadhaar enabled banking services. ओके मतलब यहाँ पे व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आधार इनेबल मतलब व्हाट एवर इज योर आइडेंटिफिकेशन
दैट ऑल विल बी थ्रू योर आधार कार्ड ओनली, मतलब जो आधार का अपना यूनिक आईडी रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया जाएगा। बट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब ये मुझे समझा नहीं यहाँ पे व्हाट दे आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू से। एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है तो हर जगह पे तो हम लोग आधार कार्ड देते ही है। एम आई राइट और नॉट स्टूडेंट? मतलब आप लोगों को अगर कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी करनी है, अगर आपको बैंक के रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी ओपन करना है तो उसके लिए आपको आधार कार्ड तो हर जगह पे, आधार कार्ड एंड द पैन कार्ड आर द मैंडेटरी वन, सो दैट वी नीड टू शो देम। आप लोगों ने भी अकाउंट ओपन करते हुए आधार कार्ड तो दिया रहेगा ना? यस और नो? यस मैम। हाँ, बट देन अगेन व्हाट दे इलेक्ट्रॉनिफिकेशन पेमेंट सिस्टम, मतलब यहाँ पे कैसे होता है वो उन्होंने प्रोसीजर क्यों नहीं बताया, लेकिन एईपीएस में एग्जैक्टली कैसे प्रोसीजर होता है करके। लेट मी सी दैट। बाकी फिर अपने सारे स्टूडेंट का ये हो गया अपना, ये यूनिवर्सिटी फॉर्म भर के। यस स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू फील्ड यूनिवर्सिटी फॉर्म। Yes, ma'am. यस मैम। देखो वो करके रखना है, अदरवाइज फिर आपका टीवाई का रिजल्ट आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। टीवाई का तो छोड़ ही दो, इवन आप लोगों को ये भी नहीं मिलेगा, अपना एसवाई का भी रिजल्ट का डिटेलिंग वहाँ पे नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है ये। और इंटरनल का फॉर्म भरा सब लोगों ने? यस। मैम उसमें फी, मैम उसमें जो फी रिसीट जिसने फुल फी पे किया उसका ही है ना सिर्फ? क्या लिखा है उधर उन्होंने, बताओ मुझे क्या लिखा क्या है? एक मिनट है मैम। हाँ मैम सेकेंड ईयर सेम थर्ड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन 2021-20 हाँ 2 only internal exam application form, those who have full paid fee only they should fill the form। अरे बाप रे, ऐसा लिखा है? हाँ बट मैंने ट्राई किया था बट हुआ नहीं, वो जो फी रिसिप्ट है ना वो अपलोड ही नहीं हो रहा है। फिर सिर्फ अपलोड नहीं हो रहा है, मतलब फिर सिर्फ क्यों नहीं अपलोड हो रहा है वहाँ पे? उन्होंने अगर अपलोडिंग के लिए बना तो वहाँ पे वो लोग स्कैनिंग कर रहे हैं क्या कि कितना अमाउंट वाला फी रिसिप्ट है करके, ऐसा कुछ है? मुझे मैम पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, बट वहां पर ना अपना नाम आएगा, स्टैंडर्ड बता रहा है, फिर उसके बाद ना नेक्स्ट करके ना फी अपलोड का बता रहा है। फी अपलोड पे जाएंगे ना उसके बाद अपलोड ही नहीं हो रहा है, पूरा बंद ही हो जाता है अपने आप, फिर वापस चालू करो, फिर वापस करेंगे, फिर वापस बंद हो जाता है। अरे बाप रे। हाँ, मैंने बाकी कल लोगों ने बहुत ट्राई किया। जिसका फुल पेमेंट हुआ है वो लोगों ने ट्राई किया? मैम मैंने ही ट्राई किया, मेरा फुल पे है। तो फिर भी तुझे प्रॉब्लम हो रहा है मतलब ना? हाँ मैम। ओके। देखिए मैं बात कर रही, मेहता मैम से बात किया क्या आपने? मैम मुझे आइडिया नहीं है किससे बात करना, प्रिया ने वो लिंक सेंड किया था तो मुझे लगा उनसे ही बात करना, बट अभी आपने पूछा तो मैं आपको बता दी। नहीं, एक बार इसको मतलब मेहता मैडम का नंबर रहेगा ना अपने अपने ग्रुप में तो है ना मेहता मैम? हाँ हाँ मैम है ना। हाँ, तो उनसे एक बार बात करो तो वो बता देंगे। अच्छा, एक और वीडियो ओके। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ एईपीएस के Pooja बारे में। belongs to one of those. एक मिनट, हाँ, एक और वीडियो देखो आप लोग, आपके साथ मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। ठीक, व्हाट इज एईपीएस? Rural areas of India where availing banking services is not easy and has to make the painful long distance journey to the banks in the nearby village to make even a small transaction like checking her balance. We understand the problems that people like Pooja are facing currently, especially in the rural areas. And that's why NPCI, the umbrella organization for all the retail payment systems in the country, is introducing the Aadhaar-enabled payment system. AEPS is a bank-led model which allows online interoperable financial inclusion transactions at micro ATMs through the business correspondent of any bank using the Aadhaar authentication. Include financial transactions, eKYC, demographic authentication,
use of biometric information in the UIDAI database for customer authentication, ease of making banking transaction in the remotest area of India without any hassle. All Pooja has to do is go to a business correspondent for making a transaction. She enters her Aadhaar number, informs the transaction type, bank name, amount to the business correspondent, and gives her biometric, fingerprint, or iris in the micro ATM. Once the transaction is done, the business correspondent gives Pooja a receipt of the transaction, which can be used for future inquiry. Now, Pooja could do basic banking transactions like balance inquiry, cash withdrawal, cash deposit, mobile update in UIDAI database, mini statement, Aadhaar to Aadhaar fund transfer in minutes. Pooja can even make a fund transfer by just entering beneficiary Aadhaar number as well as her Aadhaar number. The customers can also open new bank accounts in the quick time through eKYC or electronic KYC, which is beneficial both for the banks and the customers. Ask your bank for eKYC to open your bank account with ease. AEPS transactions are 100% secure and easy. Use the best finger detection technology. AEPS transactions are always seamless. AEPS is the new age banking service which enables banks to route the Aadhaar-initiated interbank transactions through a central switching and clearing agency. And NPCI, along with Partner Bank, is dedicated to making AEPS systems available in even the remote parts of the country to make sure that the underbanked society can be included in mainstream banking. Use AEPS system to make secure and faster transactions. Reach your nearest business correspondent and start making AEPS transactions now. Aadhaar-enabled payment system, powered by NPCI and other member banks. Look, if you are a business owner, then please don't. हेलो दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग तो आप सभी करते होंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो या डेबिट कार्ड से हो। तो क्या आपको पता है कि AEPS क्या होता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है और उसका उपयोग करके आप कैसे आधार कार्ड से पेमेंट सेट कर सकते हैं? तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हाय नमस्कार, मेरा नाम है कमल राज और आप देख रहे हैं टेक स्पेस। चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि AEPS क्या होता है। तो AEPS का फुल फॉर्म यहाँ पर आ जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आप आधार कार्ड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, कौन से भी शॉप में आप उसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से। तो आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम कैन यूज देयर आधार कार्ड टू पेमेंट, यानी कि आप जिसके पास आधार कार्ड है वही इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंक से पेमेंट कर सकता है। और ये AEPS टेक्नोलॉजी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरुआत की है। इसकी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से पेमेंट टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाती है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि AEPS टेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो पहला बेनिफिट आ जाता है कैश डिपॉजिट, यानी कि आप पैसे जमा कर सकते हैं आपके आधार कार्ड का यूज करके आपके रिस्पेक्टिव बैंक में। और सेकंड बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है कैश विड्रॉल, यानी कि आप आपके बैंक से पैसे इजीली निकाल सकते हो विदाउट ATM। बस आपको एक दुकानदार के पास जाना है और उसको पूछना है आपके पास पॉइंट ऑफ सेल या स्मॉल ATM मशीन है कि नहीं, उसके पास रहेगा। आपको उसको आधार कार्ड डिटेल्स देने और वो आधार कार्ड डिटेल्स को यूज करके वो पैसे डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि आपके बैंक से वो पैसे ले लेगा जितने आपको चाहिए और वो आपको हाथ में लाइव पैसे दे देगा। और थर्ड यहाँ पे बेनिफिट आ जाता है कैश ट्रांसफर, यानी कि आप आपके बैंक अकाउंट को यूज करके दूसरे बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी अकाउंट नंबर। पहले आप क्या करते थे, किसको आपको पैसे भेजने रहेंगे तो आप क्या करते हो उसका अकाउंट नंबर IFSC डाल के आप पैसे भेजते थे। पर अब इस टेक्नोलॉजी AEPS का टेक्नोलॉजी आप यूज करके आप आधार कार्ड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और फोर्थ बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है आधार टू आधार पेमेंट। तो
पहले मैंने एग्जांपल दे दिया है कि पहले आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी का यूज करके या मोबाइल नंबर का यूज करके पैसे भेजते थे, पर अभी इस टेक्नोलॉजी में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में आ गया है आधार टू आधार पेमेंट, यानी कि दूसरा एक पर्सन उसके पास आधार कार्ड रहेगा, आपके पास भी आधार कार्ड रहेगा, तो आप आधार कार्ड को यूज करके उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर या आईएफएससी उसकी जरूरत नहीं है आपको। और फिफ्थ बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है बैंक बैलेंस इंक्वायरी। आपको पता करना होगा कि कितना बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में है, तो आप एईपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो भी जान सकते हैं। तो ये रहे 5 बेनिफिट। तो चलिए जान लेते हैं कि एईपीएस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है और क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो पहली चीज आती है आधार कार्ड। एक एईपीएस यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड जरूरी होना ही चाहिए। विदाउट आधार कार्ड आप पेमेंट नहीं कर सकते। और आधार कार्ड के साथ साथ आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। जब आपका अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा तभी आप आपके बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफर या निकाल सकते हैं आपके आधार कार्ड से। आईडिया सांग की मम्मी लेक्चर मध्ये इन दो चीजों का आपका कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप एईपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि एईपीएस टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो कभी भी आप शॉपिंग कर रहे होंगे, कोई भी मॉल या दुकान में आप सामान ले रहे होंगे, तो तब उस टाइम में आपके पास क्रेडिट कार्ड के डिटेल या डेबिट कार्ड के डिटेल नहीं रहेंगे, तो आप आधार कार्ड का पेमेंट यूज कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में आपको दुकानदार या मॉल वाले से आपको पूछना है कि आपके पास माइक्रो एटीएम या पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन है कि नहीं। जब वो कहेंगे कि हमारे पास है तो वो पूछेंगे आपको आपके आधार कार्ड के डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो आप उस केस में आप आधार कार्ड के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड का यूज करके आपको जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना होगा तो तब आपसे पूछेंगे थर्ड स्टेप में कि आप किस टाइप का ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आपको जब भी 5 केसेस मैंने बताया, आपको पैसे निकालने हैं क्या इंक्वायरी करना है कि ट्रांजैक्शन, तो इस केस में आपने शॉपिंग किए तो आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो पूछ लेंगे कि कुछ दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वुड यू लाइक टू डू। तो आपको बोलना है कि मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे उस मशीन में। जब भी आप फिंगरप्रिंट रखेंगे आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड से एक रिसिप्ट बन जाएगी और वो पेमेंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे तो उस पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन का यूज करके आप पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं। इस केस में आपने शॉपिंग किए तो आपको पैसे ट्रांसफर करने रहेंगे। तो आपको पूरा समझ आया होगा कि आप एईपीएस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एईपीएस और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसकी मशीन सेम जैसे कि आप कार्ड करते थे, कार्ड स्वाइप करते और एटीएम पिन डालते हैं, वैसी मशीन होता है। बस उसके पास उस मशीन के ऊपर एक आइरिस होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, जिसके यूज करके आप आपके आधार कार्ड के डिटेल्स आप फेच कर सकते हैं यानी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी? ओके सो आई थिंक इट इज मोर क्लियर ना सेकंड वीडियो में। व्हाट यू ऑल से? यस यस मैम। ना ज्यादा वहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग में दिया उन्होंने कि एईपीएस एग्जैक्टली कैसे काम करता है। बट व्हाट आई अंडरस्टूड कि एईपीएस वी कैन नॉट डू इट ऑन द मोबाइल, मतलब वहाँ पे हम लोगों के पास वो मशीनरी होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एनी द पर्सन टू होम वी वांट टू डू द पेमेंट, उसका अकाउंट नंबर और वो बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह वो सब होने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द आधार कार्ड नंबर ऑफ दैट पर्सन वी कैन डू इट। लेकिन उन्होंने कहा है कि पेमेंट वो सब करने के लिए वी नीड टू लाइक फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग वगैरह सब होने की जरूरत होनी चाहिए। तो मतलब बैंक में ही जाना ऐसे जरूरी नहीं, अगर अपने पास वो मशीन अवेलेबल रहेगा तो थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन। वो मशीन अगर घर पे है अवेलेबल, तो दिस इज व्हाट द आधार इनेबल्ड। बट क्या लगता है आप लोगों को, इट इज मोर कन्वीनियंट? क्या एडवांटेजेस क्या लगा आप लोग बाकी चीजों से अगर कंपेयर करेंगे तो? आप लोगों का क्या व्यू है एईपीएस के बारे में? आधार कार्ड का डिटेल मुझे नहीं लगता कोई इतना मतलब किसी को देता रहेगा, जैसे बैंक का नहीं देता वैसे आधार कार्ड भी डिटेल नहीं देता रहेगा। बट
व्हाट डू ऑल से, कैसा लगा आप लोगों को ये AEPS? कन्वीनियंट है या नहीं है? या फिर मोबाइल बैंकिंग इज मच बेटर देन द AEPS? Hi, ma'am. यस मैम, बिकॉज अकाउंट नंबर भी यूज नहीं होता तो सेफ भी है, देन इजीली ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, बेनिफिशियल है मैम। बेनिफिशियल है, लेकिन मोबाइल के थ्रू से नहीं हो रहा है ना ये, मतलब घर पे बैठ के नहीं होगा, हम लोगों को वहां पे जाना ही पड़ेगा और हमें वो पूरा स्कैनिंग वगैरह सब करके ही वो प्रोसीजर आगे करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लमेटिक विच आई फील। अदरवाइज ठीक है, मतलब वहाँ पे अकाउंट डिटेल वगैरह नहीं जाता है तो वो बात अच्छी है। लेकिन उन्होंने और एक चीज कही कि अगर सपोज हम लोग किसी शॉप पर किसी शॉपकीपर पे जाते हैं और उनके पास मशीन अवेलेबल रहेगा, तो उनसे अगर हमें वो पैसा विड्रॉ करवाना है तो हम लोग हमारा आधार कार्ड का डिटेल देके वो स्कैनिंग वगैरह करके देन वो पैसा वो विड्रॉ करेगा उसकी इसमें, और फिर हमें हमें वो पैसा देगा। तो दैट कैन ऑल्सो गेट हैपन, बट पता नहीं कितना सेफ रहेगा। मुझे खुद को ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, इसके लिए मैं हमेशा उसके लिए बहुत नेगेटिव थॉट नहीं रहती हूँ शायद से। बट जो लोग बहुत यूज टू होते रहेंगे दे कैन बी, दे मस्ट बी यूजिंग इट। AEPS मैंने अभी तक तो यूज नहीं किया है कभी, और आई थिंक तुम लोगों ने भी नहीं यूज किया रहेगा AEPS, एम आई राइट? यस, किया है मैम, किया है। किया है AEPS यूज? कैसा रहा फिर? क्या अमित ने यूज किया? अमित, यस मैम। हम लोग को पता ना थोड़ा कैसा था, मतलब उसका क्या कन्वीनियंट मोड था? क्या तूने स्टेप किया था जो उन्होंने बताया वैसा ही स्टेप गया था पूरा? व्हाट वाज द स्टेप? मैम मेरे मामा करते ये सब, तो मेरे पापा ने आधार कार्ड लेके गया था और हाँ, आधार कार्ड का नंबर दिया और उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैन किया और पैसा निकाल दिया अच्छा तो डायरेक्ट। पैसा निकाल दिया, मतलब मतलब वो पैसा किसके अकाउंट में आया? मतलब जब पापा पैसे निकालने वो तो मेरे मामा के अकाउंट में आया, मेरे मामा के अकाउंट में आया और मेरे मामा मेरे मतलब पैसा दे दिए 10,000 पापा को। नहीं नहीं, तो उन्होंने मतलब कैसे फिर जो मामा के अकाउंट में आया तो उन्होंने फिर ATM से निकाल के वगैरह पैसा दिया, वैसे उन्होंने किया फिर? वैसा कुछ उन्होंने अपने